Do IIMs actually put pressure during the interviews? क्या स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है जानबूझ? क्या ऐसे इंटरव्यूज अगर आपने दिए तो आपका सिलेक्शन होगा? किसी के पिताजी में दम नहीं है कि वो तुमको रोक पाए। हाथी निकलते निकलते पूछ रह गई, कहीं वो बात अटक न जाए। स्टूडेंट्स आर अफ्रेड कि सर मेरा तो बस जाते से खत्म हो गया इंटरव्यू, पता ही नहीं पड़ा, कुछ पूछा ही नहीं। कि जब तक वो बैठने का बोले ना तब तक आप बैठे ना। गद्दा बिस्तर लगा है तुम्हारे लिए बैठने के लिए, चेयर रखी तो है, बैठ जाओ। नॉट एबल टू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। आपको 3 इडियट्स का वो इंटरव्यू याद है जहां पर एक बहुत ऑनेस्टी के साथ एक पर्टिकुलर किरदार अपनी बात रखता है? बट क्या ऐसे इंटरव्यूज अगर आपने दिए तो आपका सिलेक्शन होगा? यूजुअली स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी चैलेंज ये आती है कि उसने कुछ मूवीज लाइक 3 इडियट्स से वो इंटरव्यू के कुछ सीन देखे, या ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरव्यू देखा भी है तो वो रोडी शो का, जिस तरीके से तो इंटरव्यूज दिए नहीं जा सकते। पर वो बात कहते हैं ना कि कैट अच्छा गया लेकिन हाथी निकलते निकलते पूछ रह गई, कहीं वो बात अटक न जाए। तो इंटरव्यूज किस तरीके से दिए जाएं, आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पॉडकास्ट में सीखेंगे फ्रॉम भूषण सर, फ्रॉम द ओजी भूषण सर। भूषण सर, मुझे ये बताइए कि एक IIM इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है? I think I used to have a very good mentor. And he was very strict and in a way slightly rude as well. जो typical old professors type के लोग रहते हैं, जो बहुत मुंह पे आपके सामने बहुत straight forward तरीके से चीज़ें बोल देते हैं। He used to say कि IIM के इंटरव्यू में उनकी जो मर्जी हो वो पूछ सकते हैं। तो किसी के पिताजी में दम नहीं है कि वो तुमको रोक पाए, कि उनको कोई रोक पाए। So the whole thought is that anything and everything can be asked under sun. And the whole idea is to judge you as a candidate whether you are the right fit for the seat that they are offering you at a prestigious B school. So whatever makes sense, it can be stress-based interview, it can be understanding your academics, it can be work ex, it can be hobbies, it could be, think of you as a candidate and anything related to you can typically be asked. How long does an IIM interview last? Again, कोई time limit specific नहीं है. I've had experiences of students जहाँ से they've shared that 4 से 5 मिनट में इंटरव्यू रैप अप हो गया, and some have stretched for 45 minutes plus as well. So ऐसा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते और कोई जजमेंट भी नहीं बना सकते कि अगर इंटरव्यू लंबा गया है तो अच्छा ही जाएगा या खराब जाएगा। या कई बार स्टूडेंट्स आर अफ्रेड कि सर मेरा तो बस जाते से खत्म हो गया इंटरव्यू, पता ही नहीं पड़ा, कुछ पूछा ही नहीं। तो डज इट मीन कि इंटरव्यू खराब गया? नॉट रियली। सो I would like to understand 5-6 broad areas. कोई ऐसे areas हैं जहां पर स्टूडेंट को पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए? I mean, are there some classification points? Definitely. In fact, when you prepare for an interview, the first thing that you should prepare is based on different themes. One theme can be career. So your long-term career goal, short-term career goal, immediate plans for career. If you have started some venture, how did it go? Why it failed? If it failed, if it was a success, why didn't you continue? And stuff like that. So anything and everything related to a domain of career. Then the other head could be academics. So अभी तक आपने graduation में जो करा है, कोई professional certifications वगैरह करे हैं, so you need to be very well prepared about academic questions from that area. Then next comes the head of your achievements and activities. So it can be extracurricular activities and achievements. It could be co-curricular activities and achievements. Then there could be segment on hobbies. So any particular hobbies that you pursue and follow. Then there could be questions on current affairs. So you can create a heading on current affairs and GK in general. Typically these are the areas. Then there could be miscellaneous questions like puzzles or generic questions which test your aptitude. How did your CAT go and stuff like that. So a normal conversation broadly defined around these 4-5 broad areas. All right. Should I wear a blazer on interview day? If possible, yes. I'll be very straightforward and direct because कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर कुछ जगह बोला है नहीं भी पहन के जाए तो चलता है, तो चलता है obviously, but if possible, that's why I said. पर क्यों पहनना चाहिए अगर पहनना चाहिए तो? Everything that you do, starting from the part where your CV is shared till the time you enter the room, everything is giving a message. Right. And that message has to be very strong and straightforward and clear that you're serious for what you're aspiring for. तो एक फॉर्मल डिस्कशन है, फॉर्मल डिस्कशन में आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप फॉर्मल क्लोथिंग या अटायर में जाओ, योर शूज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेम, योर एंटायर गेटअप, बॉडी लैंग्वेज even should speak volumes about the sincerity
with which you want to showcase your potential to deserve a particular seat at one of the top B schools. So the whole idea is not to get buckled under pressure. The whole idea is to showcase a message where you feel that you're confident, you're self-assured, you're able to communicate the right messages through anything and everything that you do, including your dressing sense. All right. Do IIMs actually put pressure during the interviews? क्या stress create किया जाता है जानबूझकर? Yes. In fact, I've had multiple examples where students, when they've entered the interview room, have not been asked by the panel members to sit. Right. And then, typically candidates are taught कि जब तक वो बैठने का बोले ना तब तक आप बैठे ना, और अगर कुछ टाइम तक बैठने का बोले ही ना तो आप पोलाइटली पूछ सकते हो. So one of the candidates actually politely asked, sir, may I have the permission to sit? And the panel members reacted so weirdly that they said, तो और क्या गद्दा बिस्तर लगा है तुम्हारे लिए बैठने के लिए, चेयर रखी तो है बैठ जाओ. अब sometimes for a candidate who is 22-23-year-old, right, who is very polite and well mannered and has asked you for permission, it can throw people off guard. Right. The candidate sat and she was like clueless कि भाई मैं मतलब IIM के interview में आई हूँ. How to react after that? I mean, should we subconsciously train our brains that something of this sort can come on the plate any point of time? Exactly. The best way is not to react at all. All right. है ना. तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रिएक्ट करें ही ना, आप रिस्पॉन्ड करें. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स कि आप थोड़ा सोच समझ के बिहेव करें. सो टेक अ पॉज, थिंक व्हाट दे हैव सेड एंड टेक अ चेयर पोलाइटली. थैंक यू सो मच सर फॉर योर परमिशन. सो देन इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज कि ठीक है, गद्दा बिस्तर तो नहीं लगाएंगे तुम्हारे बैठने के लिए, जो चेयर है उसी पे बैठना है. सो मे बी ही इज स्लाइटली स्ट्रिक्ट, रूड, डजंट मैटर. आई मीन देयर इज अ पर्पस बिकॉज ऑफ विच द पैनल मेंबर्स आर सिटिंग देयर. Generally, this is a tactic where students are, evaluated whether they can handle such stress or some weird communications that can happen. But sometimes it can be, natural as well. Maybe he had a long day. Maybe he was stressed about something. So panel members के साथ भी कभी-कभी हो सकता है. बहुत rare है. वैसे तो generally जानबूझ के ही किया जाता है to evaluate. तो we should know this beforehand. It's okay. I don't have to react. I'll just take my place and continue. All right, next set of questions. Now I've taken these set of questions from students only जिनका CAT में बहुत अच्छा percentile आया है. So one student came to me and he has asked this particular question: how to form my HR script? Because if I am ready with a human resource set of questions that are being asked, right, तो किस तरीके से मैं स्क्रिप्ट बनाऊं? जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उन क्वेश्चंस को जो कॉमन क्वेश्चन होती है, करेक्ट, उसके अराउंड आंसर्स किस तरीके से बनाऊं? I think best way is to create a life story first. Okay. Write down every small little detail that has happened with you, that you have been a part of, that can be used as a line of communication when it comes to interviews. तो आप अपने सबसे अच्छे मोमेंट, सबसे खराब मोमेंट, सबसे वीक मोमेंट, सबसे वल्नरेबल मोमेंट्स, सबसे हैप्पी मोमेंट्स, एक्टिविटीज़ जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा है, एक्टिविटीज़ जिसमें आप जीते हो, एक्टिविटीज़ जिनमें आप हारे हो, पेरेंट्स के साथ आपका कम्युनिकेशन, टीचर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स के साथ आपका कम्युनिकेशन टिपिकली कैसा रहा है, व्हाट इज़ द इमेज दैट योर फ्रेंड्स हैव ऑफ यू, योर टीचर्स हैव ऑफ यू, your parents have of you. In general, what is the image that you carry for yourself? What are the expectations that you have? Just create a very comprehensive document about yourself and keep on updating it, because एक दिन में नहीं होगा ये. Right. So आप वो pages भरते जाएंगे उस document के, and then pick nuggets from those documents to create your HR specific questions. की generic question आता है, tell me some of your strengths. और उसके बाद expectation ये रहती है कि आप instances भी गिनाओ, right, where you have showcased this strength. For example, बहुत generally students बोलते थे I'm very hardworking. Right. अब भैया very hardworking becomes subjective. कि मेजर कैसे करें भाई, तुम 4 घंटे पढ़ते हो, उसको हार्डवर्किंग बोल रहे हो, 6 घंटे पढ़ते हो. कोई इंस्टेंस ऐसा है जहाँ पे आपने शोकेस करा हो हार्डवर्किंग नेचर. आप बोलते हो यू आर अ गुड नेगोशिएटर. सम पीपल से दिस दैट आई हैव मैनेज कॉलेज फेस्टिवल्स, बजट हमने इतना वो करा था, हमने स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छे अमाउंट पे ले ली. नेगोशिएटर एक इंस्टेंस हुआ. When you say you're a good negotiator, you should have at least 2 or 3 instances, if not more. Right. Small, big, doesn't matter, but you should be ready with examples कि I have negotiated these many deals at these many prices, this was the stake, and I have catered to these many different events. इससे एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है कि you can only speak truth about yourself. Absolutely. And आप अगर negotiation लिख रहे हो and that has not been the part and parcel of your life history, then it's going to it's going to be a big blow to you. That point of time. It's going to be a big blow. Think of it this way,
that there's a good chance that the professor who is evaluating you might be a professor who is teaching negotiation skills at the B school. Right. तो जो प्रोफेसर आपको नेगोशिएशन स्किल्स आगे जाकर और इम्प्रूव करवाएंगे, सिखाएंगे, उनके सामने आप ये बोल रहे हो कि नेगोशिएशन में मैं अच्छा हूँ एंड यू कैन नॉट ब्लफ, तो वहाँ पे यू आर नॉट प्लेइंग पोकर देयर. राइट. तो यू अंडरस्टैंड सीरियसनेस एंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, दैट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ सो वेल दैट इट कम्स वेरी नेचुरली. मतलब ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, मेरी लाइफ का अगर हिस्सा रहा है तो वो कितना नेचुरली मेरे अंदर से निकलेगा उसकी प्रैक्टिस कर लें कि आप फंबल ना करें, आप अननेसेसरी प्रेशर ना लें. The whole part of preparation is to make sure that we sound as natural as possible there, without bluffing, without cheating, without conveying any false information. So I think that should be. I think big message to all the student audiences who are listening to us over here via this particular answer, that you have to put yourself to them and you cannot be bluffing. आप झूठ बोल ही नहीं सकते. इंटरव्यू एक ऐसी जगह है जहां पर क्वेश्चंस तो पहले आउट हो जाते हैं. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अकेला पेपर है जिसके पेपर्स क्वेश्चंस आउट हो जाते हैं, लेकिन आंसर हर स्टूडेंट के अलग अलग होंगे आपकी जर्नी के हिसाब से. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. एंड आई थिंक ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है जो इशू आता है कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज ट्रेमेंडस रोल, और वो इंटरव्यूअर के सबकॉन्शियस ब्रेन को काफ़ी हद तक चेंज कर सकती है. लाइक मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है इस तरीके से कंधे झुका के बैठना. कुछ स्टूडेंट्स जब चेयर को पीछे करते हैं तो बहुत जल्दी करते हैं और बैठ जाएंगे एंड एवरीथिंग. कुछ लोगों का गुस्सा दिख जाता है. सो ऑल दोज नेगेटिव ट्रेट्स दिख जाते हैं. तो हाउ टू ओवरकम देम? और ये एक सबकॉन्शियस एफर्ट है, इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉन्शियस एफर्ट. राइट. सो एवरीथिंग कैन बी लर्न्ड. The first step is to get to know what is right and what is wrong, and instead of right and wrong I'll use the term appropriate. Right. तो फॉर एग्जांपल जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो आपने बोला कि कुछ लोग क्रिकेट तरीके से बैठते हैं कि झुक गए हैं, उनकी बैक आर्च फॉर्म में है. So think of it this way, you should know the basic etiquettes of a typical interview and understand what is appropriate behavior, what is inappropriate behavior. For example, usage of hands. Right. तो कई बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, सर मैं टेबल पे बैठा हूँ तो क्या मैं टेबल के ऊपर टिक कर हाथ रख सकता हूँ? क्या मैं फोल्डर टेबल पे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता? इफ आई यूज माई हैंड्स कैन आई मेरा एग्जैजरेटेड हैंड मूवमेंट तो नहीं हो रहा है कि इंटरव्यू पैनल के एकदम पास में जा रहा है हाथ. तो बहुत सारे छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं. हैव अ मेंटर that can communicate this very very clearly to you कि boss this is appropriate, this is not. Once you have identified, you will have to make a conscious effort not to commit those mistakes. Right. Second part is about when you say body language, your body language should effuse positivity. Right. ये मैं बहुत बार बोलता हूँ. Very important. कैंडिडेट्स को कि कई बार आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके खुद ही बोल सकते हैं यार ये बंदा अनइंटरेस्टेड लग रहा है. राइट. कई बार वी मीट पीपल एंड वी से यार इसका इतना इंटरेस्ट लग रहा है बात करने में. सेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स. जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं एक इंडिविजुअल के, वो और नेगेटिव ट्रेट्स हैं अंदर के अंदर. आप जेलसी में नेगेटिव कर सकते हो, आप गुस्से को नेगेटिव में कर सकते हो. एब्सोल्युटली. आप डिसइंटरेस्ट की आप बात करते हो, वो भी नेगेटिव है. करेक्ट. सो वो दिखता है. राइट. किसी न किसी तरीके से. हाँ, डिसइंटरेस्ट टिपिकली मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनइंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट. सो डिसइंटरेस्ट इज अनबायस्ड, अनइंटरेस्ट इज शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट. तो अनइंटरेस्टेड बिल्कुल भी साउंड ना करें. एंड देयर शुड बी अ सेंस ऑफ एनर्जी. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स लेट बैक हो जाते हैं. दे फील दैट इट्स अ वाइवा, तो मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है तो मैं आंसर कर रहा हूँ यस सर, नो सर. Imagine that when somebody is asking you for validation, yes sir, I do. Yeah. The moment you speak in this tone, yes sir, I do. When you add that two words, I do, it attaches that sense of energy, exuberance that is expected of a candidate. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं that can play a huge role in the way you communicate in front of the panel members and add value. All right, एक sentence मेरे सामने आया. Humility is the best trait that you can showcase in an interview. Is it true or not? Yes. Whether it's the biggest trait or not can be debated, but definitely one of the more important traits. And understand why humility is important. What is humility? It's being humble and down to earth and being grounded in what you have achieved so far, which makes you very open to suggestions, criticism. And in today's day and age, I think this one trait is extremely crucial, that you should be open to criticism, and be able to take negative things or things which are not very positively spoken about in a constructive manner and try and improve. Right. You will see very often people are not able to appreciate genuine feedback.
मतलब आप बहुत सारे लोगों को सुनोगे कि यार प्लीज गिव मी यू नो ऑनेस्ट फीडबैक, ये टर्म यूज कर लिया जाता है, ऑनेस्ट फीडबैक दे दो। बट जब उनको आप फीडबैक देते हो और उनको क्रिटिसाइज करते हो किसी बात के ऊपर कि यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट, तो उनको बुरा लग जाता है। पीपल आर नॉट एबल टू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली. So humility is that one trait. If you have it in you, you'll be open to understanding that I am also human. I am someone who is prone to committing mistakes, and I am going to learn from those mistakes and move on and improve. So जो constant improval वाला part है तब आ पाएगा जब आपके अंदर humility का trait हो. So absolutely important for you to be humble. Okay, one more question. That day students are immensely nervous. I think this one particular thing is reflected in their body language. How to overcome that? And there's an attached question to this particular question also. बहुत बार 3 से 4 क्वेश्चंस एक के बाद एक गलत हो जाते हैं या नहीं आते, तो ये जो नर्वसनेस है वो और बढ़ जाती है. Correct. How to deal with that particular part? So think of it this way, that some amount of nervousness is good. So when I say some amount of nervousness, it may mean that you may not be feeling 100% confident, you are not able to perform the way you were able to perform in maybe your mock interviews. All that is fine. कुछ लोगों का नर्वसनेस का तरीका मतलब एग्जिबिट होने का ये रहता है दैट देयर हैंड्स स्टार्ट शेकिंग. तो वो जब इंटरव्यू में आंसर कर रहे हैं तो यू विल रियलाइज कि उनके हाथ काँप रहे हैं. दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. दैट इज नॉट टेकन नेगेटिवली. स्टूडेंट्स को डर लगता है कि सर मेरे हाथ कांपते हुए दिखेंगे, उन्होंने कुछ सॉल्व करने को दे दिया और मेरा पेन शेक कर रहा है तो उनको दिख जाएगा कि मेरी हैंडराइटिंग के कारण मैं नर्वस हूँ. इट्स परफेक्टली फाइन. यू हैव नथिंग टू वरी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है. सेकेंड क्वेश्चन कि जब क्वेश्चन के आंसर्स और नहीं आते तो वो नर्वसनेस और बढ़ जाती है एंड देन स्टूडेंट्स स्टार्ट स्वेटिंग. फिर उनको अपना हैंकरचिफ निकाल के कई बार पसीना पोंछना पड़ता है बिकॉज इट्स ड्रिपिंग वेट. और वो भूल भी जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन का अगर आंसर उनको पता भी हो. कई बार वो फंबल कर जाते हैं. कई बार पूछना पड़ता है सर व्हाट डिड यू जस्ट आस्क, तो भाई आर यू नॉट अ गुड लिसनर, वो वाला प्रेशर आ जाता है कि मुझे सेकंड टाइम क्यों पूछना पड़ा. Some bit of nervousness is okay. They understand that it's an important occasion for you. You're bound to get nervous. बट जो आपने पार्ट बोला कि वो क्वेश्चन के आंसर्स भूल जाते हैं, राइट, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे टू द बेस्ट ऑफ इट, वो वाला पार्ट अगर आप अवॉइड कर पाए वेयर दे विल वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू एग्जिबिट दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, देन देयर इज सम इशू इन योर प्रिपरेशन. तो आप मॉक इंटरव्यूज में ही अपने आप की प्रिपरेशन इतनी सॉलिड कर लें दैट इवन इफ यू आर नर्वस, इवन इफ योर हैंड्स आर शेकिंग, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू से. राइट. तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो कि आपको जो आता है वो आप डिलीवर ना कर पाए. सो इट्स ओके इफ यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू से सर आई डू नॉट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. बट द प्रॉब्लम इज a lot of times candidate know the thing. Right. They'll be able to share that after coming out, but वो उस इंटरव्यू रूम में नहीं बोल पाते. वो आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. थैंक यू भूषण सर. आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था. आप लोग बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ के बारे में सीखे होंगे और जितनी नहीं सीखे, हमारा एडमिट श्योर बैच है ना, यू कैन चेक आवर एडमिट श्योर बैच लिंक इन द फर्स्ट कमेंट गिवन बिलो, जहाँ पर हम लोग काफ़ी डेप्थ पे जाकर इंटरव्यूज़ के बारे में, जीडी के बारे में, वैट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द टॉप नॉच कॉलेज इंटरव्यूज एज वेल. सो दिस वाज अ डिस्कशन. हम और डिस्कशंस लेके आने वाले हैं डेज टू कम. स्टे ट्यून्ड ऑन सुपरग्राड्स कैट. हिट द लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना. अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा तो हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देख पाओगे.